Chapter 5. The Impact of British Rule on Rural India. The East India Company established its hegemony in Bengal after the Battle of Plassey in 1757. Unlike the Mughal rulers, they were only interested in exploiting Indian resources for the benefit of British industrialists and traders. The conquest and exploitation of India was an important means of capitalist development in Britain. Money siphoned off from India strengthened Britain's economy and elevated its whole social and political system. The exploitation of the Indian market and of Indian raw materials supported England's industrial expansion in the 19th century. ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में अपनी सत्ता स्थापित की। मुगल शासकों से अलग, कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारतीय संसाधनों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करना था, ताकि ब्रिटिश उद्योगपतियों, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और व्यापारियों, ट्रेडर्स को फायदा हो सके। भारत की विजय और शोषण ब्रिटेन में पूंजीवादी विकास, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का एक अहम तरीका बन गया। भारत से निकाली गई धनराशि, मनी साइफोन्ड ऑफ, ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को मजबूत किया और उसके पूरे सामाजिक और राजनीतिक तंत्र, सिस्टम को ऊंचा किया। भारतीय बाजार, इंडियन मार्केट और कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स का शोषण इंग्लैंड के औद्योगिक विस्तार, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में सहायक था, खासकर 19वीं सदी में। रूरल इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश. When the British came to India, villages were self-sufficient units. They needed very little from the outside world except items like salt and clothes. Each village was a well-knit society comprising professions suited to the village economy. While peasants tilled the land, many supporting occupations like carpenter, potter, weaver, priest, etc. performed all these services needed by the village. The farmer owned the land he cultivated and he could not be evicted. He paid a small part of his produce to the king. In case of crop failure due to natural calamities, such as floods, droughts, the king reduced the land revenue and sometimes totally wrote it off. The coming of the British changed the scenario. रूरल इंडियन इकोनॉमी बिफोर द ब्रिटिश. जब ब्रिटिश इंडिया में आए, तब गांव आत्मनिर्भर, सेल्फ सफिशिएंट इकाइयां हुआ करते थे। इन्हें बाहरी दुनिया से बहुत कम चीजों की जरूरत होती थी, जैसे सॉल्ट और क्लोथ्स। हर गांव एक मजबूत और सुसंगठित समाज था, जिसमें ऐसे पेशे होते थे जो गांव की इकोनॉमी के लिए उपयुक्त थे। किसान जमीन की खेती करते थे और कई सहायक पेशे जैसे कारपेंटर, पॉटर, वीवर, प्रीस्ट आदि गांव की जरूरतों को पूरा करते थे। किसान अपनी जमीन का मालिक होता था और उसे बेदखल, एविक्ट नहीं किया जा सकता था। वह अपनी उपज का एक छोटा हिस्सा राजा को देता था। अगर फसल बर्बाद हो जाती, जैसे बाढ़, फ्लड या सूखा, ड्राउट के कारण, तो राजा भूमि कर, लैंड रेवेन्यू कम कर देता था और कभी-कभी पूरी तरह से माफ भी कर देता था। लेकिन ब्रिटिशों के आने से यह सब बदल गया। Advent of British rule. The Battle of Plassey marked the decline of India's rural economy. After acquiring political authority in Bengal, the company annexed the monopoly over commerce in Bengal. After the Battle of Buxar, 1764, got the right to collect revenue of Bengal, Bihar and Odisha. For some time, the company did not disturb the existing structure of revenue collection. But soon,
The corrupt officials of the company started harassing the peasants. बंगाल में राजनीतिक सत्ता, पॉलिटिकल अथॉरिटी हासिल करने के बाद कंपनी ने बंगाल में व्यापार, कॉमर्स का एकाधिकार, मोनोपोली कर लिया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, ओडिशा से राजस्व, रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल गया। कुछ समय तक कंपनी ने राजस्व संग्रहण की मौजूदा संरचना को छेड़ा नहीं, लेकिन जल्द ही कंपनी के भ्रष्ट अधिकारियों, करप्ट ऑफिशियल्स ने किसानों को तंग करना शुरू कर दिया। The company needed money for strengthening its administration and expanding its dominion. To extract more income from land revenue, Robert Clive, the governor of Bengal, introduced the dual system of government. Taking Clive's work forward, Warren Hastings, the first Governor-General of India, abolished the dual system and formed a Board of Revenue to supervise the whole machinery of revenue collection. कंपनी को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, strengthening its administration, और अपने साम्राज्य का विस्तार करने, expanding its dominion, के लिए पैसे की जरूरत थी। जमीन से ज्यादा आय, इनकम प्राप्त करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के गवर्नर, ने ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की शुरुआत की। क्लाइव के काम को आगे बढ़ाते हुए वॉरेन हेस्टिंग्स, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ने ड्यूल सिस्टम को समाप्त किया और राजस्व संग्रहण की पूरी मशीनरी की निगरानी, सुपरवाइज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गठित किया। Changes under British rule. With the expansion of British territories, the amount of revenue collection also increased, and land revenue became the main source of income for the British. This forced the company to formulate such policies that guaranteed maximum revenue collection regularly. ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ राजस्व संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन की मात्रा भी बढ़ी और भूमि कर, लैंड रेवेन्यू, ब्रिटिशों के लिए आय, इनकम का मुख्य स्रोत बन गया। इससे कंपनी को ऐसी नीतियां बनानी पड़ी जो नियमित रूप से अधिकतम राजस्व संग्रह, मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। To smoother the revenue collection mechanism, the company brought about some changes. The three presidencies, Bengal, Bombay, and Madras, adopted different systems of fixing responsibility for the payment of land taxes. In Bengal, the local zamindars were asked to collect fixed amount of taxes in return for ownership of large estates. Under this arrangement, the British did not share in the gains of any potential improvements in agricultural productivity. राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को सुगम, स्मूदर बनाने के लिए कंपनी ने कुछ बदलाव किए। 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, बंबई और मद्रास, ने भूमि कर भुगतान, लैंड टैक्सेस की जिम्मेदारी तय करने के लिए अलग-अलग प्रणालियां अपनाई। बंगाल में स्थानीय जमींदार्स को बड़े जमींदारी क्षेत्रों, लार्ज एस्टेट्स के स्वामित्व के बदले निश्चित मात्रा में कर, टैक्सेस वसूलने के लिए कहा गया। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिशों को कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में होने वाले किसी भी संभावित सुधार, इम्प्रूवमेंट्स से लाभ नहीं मिलता था। In Madras and Bombay Presidency, peasants paid annual taxes directly to the government. The tax rate could be adjusted at fixed intervals. So in this case, the British could reap the benefits of agricultural expansion.
मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में किसान पीजेंट्स सीधे सरकार को वार्षिक कर एनुअल टैक्सेस चुकाते थे। कर की दर टैक्स रेट को निश्चित अंतरालों इंटरवल्स पर समायोजित एडजस्टेड किया जा सकता था। इस प्रकार ब्रिटिशों को कृषि विस्तार एग्रीकल्चरल एक्सपांशन के लाभ प्राप्त हो सकते थे। India was forced to produce raw materials, including raw cotton, for export to England at throwaway prices and buy manufactured good, including cloth, from England at high prices. This placed India at a great disadvantage, since it was forced into a situation where it lost on both sides. As a result, the cottage industries that produced textiles in India were ruined. भारत को कच्चे माल रॉ मटेरियल्स जैसे कच्चा कपास रॉ कॉटन इंग्लैंड को अत्यंत कम कीमतों थ्रो अवे प्राइसेस पर निर्यात एक्सपोर्ट करने के लिए मजबूर किया गया और इसके बदले उसे इंग्लैंड से तैयार माल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जैसे कपड़े क्लॉथ उच्च कीमतों हाई प्राइसेस पर खरीदने के लिए कहा गया। इससे भारत को एक बड़ी नुकसान डिसएडवांटेज हुआ क्योंकि वह ऐसी स्थिति में फंस गया था जहां उसे दोनों तरफ से नुकसान हो रहा था। इसके परिणामस्वरूप भारत में जो घरेलू उद्योग कॉटेज इंडस्ट्रीज कपड़े बनाने का काम करते थे वे पूरी तरह से नष्ट रुइंड हो गए। ब्रिटिश एग्रेरियन पॉलिसीज The British policies were mainly focused on getting maximum income from land without caring the interest of India peasants. The villagers were thus fleeced by the company as well as by its officials. British नीतियां मुख्य रूप से जमीन से अधिकतम आय मैक्सिमम इनकम फ्रॉम लैंड प्राप्त करने पर केंद्रित थी, बिना भारतीय किसानों पीजेंट्स के हितों इंटरेस्ट्स की चिंता किए। इस तरह गांवों को कंपनी और उसके अधिकारियों ऑफिशियल्स दोनों द्वारा लूटा फ्लीस्ड गया। फ्रॉम 1767 टू 1793 Warren Hastings introduced the system of auctioning the land in 1773. Before this, land revenue settlements were made annually. Now, Hastings auctioned the right to collect revenue to the highest bidder for a term of 5 years. The bidding was mainly done by rich merchants who were only interested in collecting revenue and they did not care for the productivity of the land. This increased the misery of the peasants. The system failed as the company's income did not increase at the expected rate. Hence, the old annual settlement system was reinstalled. वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में जमीन की नीलामी ऑक्शनिंग द लैंड की प्रणाली सिस्टम शुरू की। इससे पहले भूमि राजस्व लैंड रेवेन्यू का निपटान सेटलमेंट्स हर साल किया जाता था। अब हेस्टिंग्स ने राजस्व वसूलने का अधिकार राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए नीलाम कर दिया। यह नीलामी मुख्य रूप से अमीर व्यापारियों रिच मर्चेंट्स द्वारा की जाती थी, जो केवल राजस्व वसूलने में रुचि रखते थे और उन्हें जमीन की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड की कोई चिंता नहीं थी। इससे किसानों पीजेंट्स की मुसीबतें और बढ़ गई। यह प्रणाली असफल रही क्योंकि कंपनी की आय कंपनीज इनकम अपेक्षित दर पर नहीं बढ़ी। इसलिए पुराने वार्षिक निपटान प्रणाली ओल्ड एनुअल सेटलमेंट सिस्टम को फिर से लागू किया गया। In 1781, a new plan was adopted for the administration of revenue.
The essence of the new plan was to centralize the whole system of revenue collection in Bengal. A new committee of revenue consisting of 4 members assisted by a Diwan was set up. The provincial councils were abolished. The scheme suffered from all the evils and abuses of over-centralization and finally broke down. In 1786, a rational scheme was adopted. Districts were now organized into regular fiscal units and the collector in each district was made responsible for setting the revenue and collecting it. 1781 में राजस्व प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेवेन्यू के लिए एक नया योजना न्यू प्लान अपनाई गई। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य एसेंस था बंगाल में राजस्व संग्रहण रेवेन्यू कलेक्शन की पूरी प्रणाली को केंद्रीकरण सेंट्रलाइज करना। एक नया कमिटी ऑफ रेवेन्यू जिसमें 4 सदस्य और एक दीवान शामिल थे स्थापित किया गया। प्रांतीय परिषदों प्रोविंशियल काउंसिल्स को समाप्त अबॉलिश्ड कर दिया गया। यह योजना अत्यधिक केंद्रीकरण ओवर सेंट्रलाइजेशन के सभी दोषों और अत्याचारों इविल्स एंड अब्यूसेस से ग्रस्त हुई और अंत में यह विफल हो गई। 1786 में एक तर्कसंगत योजना रैशनल स्कीम अपनाई गई जिसमें जिलों डिस्ट्रिक्ट्स को नियमित राजस्व इकाइयों फिस्कल यूनिट्स के रूप में व्यवस्थित किया गया और प्रत्येक जिले के कलेक्टर को राजस्व निर्धारित करने और उसे एकत्र करने की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। It continued till the beginning of 1790 when Lord Cornwallis announced the settlement of land revenue for 10 years. This was known as the decennial settlement, to made permanent if approved by the Court of Directors. This policy of permanent assessment received legal sanction during Cornwallis' rule and in March 1793, the decennial settlement was declared permanent. यह प्रणाली 1790 की शुरुआत तक चलती रही जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भूमि राजस्व लैंड रेवेन्यू के 10 साल के लिए निपटान सेटलमेंट की घोषणा की। इसे दशवार्षिक निपटान डिसेनियल सेटलमेंट कहा गया जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्वीकृति मिलने पर स्थायी परमानेंट किया जा सकता था। यह स्थायी मूल्यांकन नीति पॉलिसी ऑफ परमानेंट असेसमेंट कॉर्नवालिस के शासनकाल में कानूनी स्वीकृति लीगल सैंक्शन प्राप्त हुई और मार्च 1793 में दशवार्षिक निपटान को स्थायी परमानेंट घोषित किया गया। To ensure regular income, the company decided to fix the land revenue of Bengal and Bihar on a permanent basis. This scheme was introduced in 1793 by Lord Cornwallis and came to be known as the Permanent Settlement. According to it, the revenue to be collected from an area was fixed permanently. The local Zmindar was asked to collect the revenue from the peasants. Every year, he had to pay the fixed amount by a certain date. He could keep the surplus amount. But if he could not pay the stipulated amount, he would lose his Zmindari rights. नियमित आय सुनिश्चित रेगुलर इनकम करने के लिए कंपनी ने बंगाल और बिहार के भूमि राजस्व को स्थायी परमानेंट आधार पर तय करने का निर्णय लिया। यह योजना 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई और इसे स्थायी निपटान परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इसके अनुसार एक क्षेत्र से जो राजस्व वसूला जाना था उसे स्थायी रूप से तय कर दिया गया। स्थानीय जमींदार
से कहा गया कि वह किसानों से राजस्व वसूल करें। उसे हर साल निश्चित तारीख सर्टेन डेट तक निर्धारित राशि का भुगतान पे करना होता था। वह शेष राशि सरप्लस अमाउंट रख सकता था, लेकिन अगर वह तय राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो उसे अपनी ज़िम्मेदारी राइट्स खोनी पड़ती थी। Thus, the collector of revenue now became a landlord and his ownership rights became hereditary. This system was extremely advantageous to the company as it ensured them fixed and regular income without the trouble of collecting it from each peasant. But on the other hand, if the Zmindar failed to pay his rent, e.g., in times of floods, droughts or due to poor crops, his land was confiscated and sold. इस प्रकार राजस्व का कलेक्टर अब एक जमींदार लैंडलॉर्ड बन गया और उसकी मालिकाना हक ओनरशिप राइट्स अब वंशानुगत हेरेडिटरी हो गए। यह प्रणाली कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद एडवांटेजियस थी क्योंकि इससे उन्हें एक निश्चित और नियमित आय रेगुलर इनकम मिल रही थी, बिना हर किसान से राजस्व वसूलने की परेशानी के। लेकिन दूसरी ओर यदि जमींदार अपनी राशि नहीं चुका पाता, जैसे बाढ़, सूखा या खराब फसल के कारण, तो उसकी जमीन जब्त कॉन्फिस्केटेड कर ली जाती थी और बेच दी जाती थी। The traditional landlords were soon replaced by the new moneyed class who preferred to live in urban areas. Thus, it introduced the concept of absentee landlords. This now class of landlords was loyal to the British. They leased out their lands on high rent to tenants who further subleased the lands. This system increased the rent rate ultimately shouldered by the last tenant, who was the actual cultivator. पारंपरिक जमींदारों की जगह जल्द ही नई धनाढ्य वर्ग मनीड क्लास ने ले ली, जो शहरी क्षेत्रों अर्बन एरियाज में रहना पसंद करते थे। इस प्रकार इसने गैर मौजूद जमींदार एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का सिद्धांत कॉन्सेप्ट पेश किया। यह नया वर्ग ब्रिटिशों के प्रति वफादार लॉयल टू द ब्रिटिश था। ये जमींदार अपनी जमीन को उच्च किराए हाई रेंट पर किराएदारों को पट्टे पर देते थे, जो फिर उन जमीनों को उपकिराए सबलीज पर दे देते थे। इस प्रणाली ने किराए की दरों रेंट रेट को बढ़ा दिया, जो अंततः अंतिम किराएदार टेनेंट, जो असली किसान एक्चुअल कल्टीवेटर था, के द्वारा वहन शोल्डर्ड की जाती थी। रियोतवारी सेटलमेंट। The permanent settlement failed to produce the desired results. A new system of collection of taxation known as Ryotwari settlement was introduced in the Madras and Bombay presidencies. स्थायी निपटान permanent settlement ने वांछित परिणाम desired results नहीं दिए। इसके बाद मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज में कर वसूलने टैक्सेशन कलेक्शन की एक नई प्रणाली रायोटवाड़ी निपटान रियोतवारी सेटलमेंट पेश की गई। In this system, the revenue was fixed for a period of 30 years after which it could be revised. It was based on the quality of the soil and nature of the crop. The rate of revenue was high, 1/2 of the produce, and the mode of collection was rigid, without any remissions. इस प्रणाली में राजस्व को 30 साल की अवधि 30 years के लिए तय किया गया, जिसके बाद इसे फिर से संशोधित रिवाइज्ड किया जा सकता था। यह प्रणाली जमीन की गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ द सॉइल और फसल की प्रकृति नेचर ऑफ द क्रॉप पर आधारित थी। राजस्व की दर बहुत उच्च थी, उत्पाद का आधा 1/2 of the produce और कर संग्रहण कलेक्शन
का तरीका कठोर, रिजिड था, जिसमें कोई छूट, रिमिशंस नहीं दी जाती थी। But it also failed to protect the interest of the riots. Although the cultivators' position was much better than the permanent settlement system, the rigid revenue collection forced the cultivators to fall into the clutches of moneylenders. However, this system was a marked improvement over the previous system, as it recognized the cultivators' right to ownership of the land. But the long-term effects of this system were not very different from those of the permanent settlement. लेकिन यह प्रणाली भी रायोट, कल्टिवेटर्स के हितों, इंटरेस्ट्स की रक्षा, प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। हालांकि किसान की स्थिति, पोजीशन, स्थायी निपटान प्रणाली से बेहतर थी, लेकिन कठोर कर संग्रहण ने किसानों को साहूकारों, मनी लेंडर्स के चंगुल में फंसा दिया। हालांकि यह प्रणाली पिछली प्रणाली से एक बड़ा सुधार, मार्क्ड इम्प्रूवमेंट थी, क्योंकि इसने किसानों के भूमि के स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ द लैंड के अधिकार, राइट्स को स्वीकार किया। लेकिन इस प्रणाली के दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म प्रभाव स्थायी निपटान से बहुत भिन्न नहीं थे। महलवारी सेटलमेंट। In 1830s, the Mahalwari system introduced in parts of northwestern provinces, centers provinces and Punjab. Mahal means a group of villages. System of common ownership of lands prevailed in these mahals, hence the system was called Mahalwari system. 1830 के दशक 1830s में महलवाड़ी प्रणाली, महलवारी सिस्टम को उत्तर पश्चिमी प्रांतों, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, मध्य प्रांतों, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू किया गया। महल का मतलब होता है गांवों का समूह, ग्रुप ऑफ विलेजेस। इन महलों में भूमि के सामान्य स्वामित्व, कॉमन ओनरशिप ऑफ लैंड्स की प्रणाली प्रचलित थी, इसलिए इस प्रणाली को महलवाड़ी प्रणाली, महलवारी सिस्टम कहा गया। The talukdar or the head of the mahal was responsible for collecting the revenue from the village and handing it over to the British collectors. महल का प्रमुख, तलुकदार या महल का प्रमुख व्यक्ति, हेड ऑफ द महल, गांव से राजस्व, रेवेन्यू एकत्रित करने के लिए जिम्मेदार था और उसे ब्रिटिश कलेक्टरों को सौंपता था। But instead of protecting the peasants, this system increased the social inequalities and proved economically disastrous. लेकिन किसानों, peasants की सुरक्षा, प्रोटेक्शन करने के बजाय इस प्रणाली ने सामाजिक असमानताओं, सोशल इनइक्वालिटीज को बढ़ाया और आर्थिक रूप से यह विनाशकारी, इकोनॉमिकली डिजास्ट्रस साबित हुई। Impact of these policies. British agrarian policies disturbed the economy of the Indian villages. Now, land became a saleable commodity. It created several classes of social parasites like the landlords and labor. This led to peasant indebtedness, and the system of bonded labor became prevalent in Indian rural society. ब्रिटिश कृषि नीतियों, ब्रिटिश अग्रेरियन पॉलिसीज ने भारतीय गांवों की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी ऑफ द इंडियन विलेजेस को बुरी तरह प्रभावित किया। अब ज़मीन एक बेचने योग्य वस्तु, सेलेबल कमोडिटी बन गई थी। इसने ज़मींदारों, लैंडलॉर्ड्स और श्रमिकों, लेबर जैसी कई सामाजिक परजीवी श्रेणियां, सोशल पैरासाइट्स उत्पन्न की। इसके परिणामस्वरूप किसानों, पीजेंट्स का कर्ज, इंडेप्टेडनेस बढ़ा और बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर का प्रचलन भारतीय ग्रामीण समाज, इंडियन रूरल सोसाइटी में बढ़ गया। These land revenue settlements impoverished the peasants.
the method of cultivation remained backward. The British or the Zamindars took no initiative to improve agricultural methods or launch irrigation projects. As the productivity of the land fell, famines became regular phenomenon. But the company remained insensitive to the travails of the peasants. In भूमि राजस्व निपटानों, land revenue settlements ने किसानों को गरीब, impoverished कर दिया. खेती के तरीके, methods of cultivation, पिछड़े, backward रहे. ब्रिटिशों या जमींदारों ने कृषि विधियों, agricultural methods में सुधार, improvement करने या सिंचाई परियोजनाओं, irrigation projects की शुरुआत करने का कोई कदम नहीं उठाया. जैसे जैसे जमीन की उत्पादकता, productivity of the land कम हुई, अकाल, famines एक सामान्य घटना, रेगुलर फिनोमिनन बन गए. लेकिन कंपनी किसानों के कष्टों, ट्रैवल्स ऑफ द पीजेंट्स के प्रति असंवेदनशील, insensitive बनी रही. To pay the high revenue, many landlords shifted from producing food crops to commercial crops such as jute, groundnut, sugarcane, etc. to increase their income. But this did not benefit the peasants. Only a small population benefited by this new trend and became richer. The peasants and artisans were rendered jobless due to penetration of foreign goods and were forced to become laborers. उच्च राजस्व, हाई रेवेन्यू का भुगतान पे करने के लिए कई जमींदारों ने खाद्य फसलों, फूड क्रॉप्स से वाणिज्यिक फसलों, कमर्शियल क्रॉप्स जैसे जूट, मूंगफली, ग्राउंडनट, गन्ना, शुगर कैन आदि की खेती, प्रोडक्शन की ओर रुख किया ताकि उनकी आय, इनकम बढ़ सके. लेकिन इससे किसानों को कोई लाभ, बेनिफिट नहीं हुआ. इस नए प्रवृत्ति, न्यू ट्रेंड से केवल एक छोटी सी जनसंख्या, स्मॉल पॉपुलेशन लाभान्वित, बेनिफिटेड हुई और वे समृद्ध, रिचर हो गए. इसके विपरीत किसान और कारीगर, आर्टिसंस, विदेशी वस्तुओं, फॉरेन गुड्स के प्रवेश, पेनिट्रेशन के कारण बेरोजगार, जॉबलेस हो गए और उन्हें मजदूर, लेबरर्स बनना पड़ा. Decline of indigenous trade, handicrafts and industries. The colonization of India by the British was the direct cause of the rapid decline in India trade and industry. The main aim of the colonizers was to uphold the British interests even if it crippled the Indian economy. Thus, without considering policies on the country, the British policies proved to be highly detrimental to the Indian handicraft industry. ब्रिटिशों द्वारा भारत का उपनिवेशीकरण, कॉलोनाइजेशन, भारतीय व्यापार और उद्योग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में तेज गिरावट, डिक्लाइन का सीधा कारण, डायरेक्ट कॉज था. उपनिवेशियों का मुख्य उद्देश्य, मेन एम, ब्रिटिश हितों, ब्रिटिश इंटरेस्ट्स को बढ़ावा देना था, भले ही इससे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी को नुकसान होता हो. इस प्रकार देश की नीतियों, पॉलिसीज पर विचार किए बिना ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश पॉलिसीज भारतीय हस्तशिल्प उद्योग, इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए अत्यधिक हानिकारक, detrimental साबित हुईं. When the British trying to establish their foothold in India, Bengal was a prosperous region. The important articles of export from Bengal were cotton and silk, salt, jute, opium and saltpeter. Even during Alivardi Khan's time, agriculture and manufacturing industries were rich and flourishing. But this wealth became a curse when the British forced the silk weavers to enter into contracts to supply stipulated quantities of cloth.
The weavers were paid prices that were far less than their usual rates. जब ब्रिटिशों ने भारत में अपनी स्थिति स्थापित करने एस्टैब्लिश देयर फुटहोल्ड की कोशिश की, बंगाल एक समृद्ध, प्रॉस्परस क्षेत्र था। बंगाल से मुख्य निर्यात, एक्सपोर्ट्स, वस्त्रों में कपास, कॉटन, रेशम, सिल्क, नमक, सॉल्ट, जूट, अफीम, ओपियम और सॉल्ट पीटर शामिल थे। यहाँ तक कि अलीवर्दी खान के समय में भी कृषि, एग्रीकल्चर और निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज समृद्ध और फल-फूल रहे थे। लेकिन यह समृद्धि, वेल्थ, एक शार्प कर्ज बन गई जब ब्रिटिशों ने रेशम बुनकरों, सिल्क वीवर्स को अनुबंधों, कॉन्ट्रैक्ट्स में बांध दिया, जिसमें उन्हें निर्धारित स्टिपुलेटेड मात्रा में कपड़ा, क्लॉथ आपूर्ति करने को कहा गया। बुनकरों को उन दरों से कहीं कम, फार लेस कीमतें, प्राइसेस दी जाती थी जो वे सामान्यतः प्राप्त करते थे। The company did not allow the weavers to work for any other party to ensure regular supply of cotton goods and raw silk. The ruin of the weavers in Bengal was completed by the unfair competition from manufacturers in England, who were jealous of the popularity of the Indian cotton goods. The industrial capitalists of Britain reduced India to an agricultural colony of British capitalism, supplying cheap raw materials and absorbing its manufactured goods. कंपनी ने बुनकरों को किसी और पार्टी के लिए काम करने, वर्क फॉर एनी अदर पार्टी, की अनुमति नहीं दी, ताकि कपास के सामान और कच्चे रेशम, रॉ सिल्क, की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। बंगाल के बुनकरों का विनाश, रूइन, इंग्लैंड के निर्माताओं, मैन्युफैक्चरर्स से असमान, अनफेयर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से पूरा हुआ, जो भारतीय कपास के सामान, इंडियन कॉटन गुड्स, की लोकप्रियता से जलते थे। ब्रिटेन के औद्योगिक पूंजीपतियों, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट्स, ने भारत को ब्रिटिश पूंजीवाद, ब्रिटिश कैपिटलिज्म, का एक कृषि उपनिवेश, एग्रीकल्चरल कॉलोनी, बना दिया, जो सस्ते कच्चे माल, चीप रॉ मटेरियल्स, की आपूर्ति करता था और उसके बनाए गए माल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, को अवशोषित, एब्जॉर्बिंग, करता था। British import policy changed from importing finished goods from Bengal to importing raw materials at the cheapest possible price and re-exporting finished Manchester cotton goods to Bengal and other parts of India. The situation became worse after the Industrial Revolution in England and was further aggravated by the opening of the Suez Canal, which enabled sea voyage from Britain to India in 25 days instead of 100 days via the Cape of Good Hope route. ब्रिटिश आयात नीति, ब्रिटिश इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव आया, जिसमें पहले बंगाल से तैयार माल, फिनिश्ड गुड्स, आयात, इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन बाद में यह कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स, को सबसे सस्ती कीमत, चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस, पर आयात करने और फिर मैनचेस्टर के तैयार कपास, कॉटन गुड्स, को बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में पुनः निर्यात, री-एक्सपोर्ट करने की नीति अपनाई गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, के बाद स्थिति और खराब, वर्स, हो गई और फिर सुएज नहर, सुइस कैनाल, के खुलने, ओपनिंग, ने इस समस्या को और बढ़ा दिया, क्योंकि इसने ब्रिटेन से भारत तक समुद्री यात्रा, सी वॉयज, को सिर्फ 25 दिन में पूरा करना संभव बना दिया, जबकि पहले यह यात्रा 100 दिन, 100 डेज, में पूरी होती थी, जो कि केप ऑफ गुड होप, के रास्ते से होती थी।
The British company took calculated steps to destroy the roots of Indian society, the Indian handloom and spinning wheel, thereby destroying the balance of the village economy. ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय समाज की जड़ों को नष्ट, डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचे समझे कदम, कैलकुलेटेड स्टेप्स उठाए। भारतीय हथकरघा, इंडियन हैंडलूम और चक्की, स्पिनिंग व्हील को नष्ट कर दिया, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था का संतुलन, बैलेंस ऑफ द विलेज इकोनॉमी भी बिगड़ गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ। The systematic policy of transferring the economic resources of India to Britain impoverished the country. The Mughal rulers had imposed heavy taxes, but they had never tried to siphon off the country's wealth. Instead, they spent their earnings in enriching the country by constructing roads, gardens, lakes, cities, palaces, etc. But the British used all means to acquire more and more wealth. भारत के आर्थिक संसाधनों, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ब्रिटेन में स्थानांतरित, ट्रांसफर करने की प्रणालीबद्ध, सिस्टमैटिक नीति ने भारत को गरीब, इम्पावरिश्ड बना दिया। मुगल शासकों, मुगल रूलर्स ने भारी कर, हेवी टैक्सेस लगाए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी देश की संपत्ति, कंट्रीज वेल्थ को बाहर नहीं निकाला, साइफन ऑफ। इसके बजाय उन्होंने अपनी कमाई, अर्निंग्स का उपयोग देश को समृद्ध, एनरिचिंग द कंट्री करने में किया, जैसे सड़कों, रोड्स, बागों, गार्डन्स, झीलों, लेक्स, शहरों, सिटीज, महलों, पैलेसेस आदि का निर्माण, कंस्ट्रक्शन करके। लेकिन ब्रिटिशों ने सभी तरीकों, मीन्स का उपयोग किया ताकि वे अधिक से अधिक संपत्ति, वेल्थ प्राप्त कर सकें। Deindustrialization. The British caused tremendous harm to the traditional handicraft industry. Heavy customs duties were imposed on Indian goods. The British officials preferred European goods. While this provided an impetus to the demand for European goods, it contributed to the decline of industries in India. The abundant availability of machine-made goods at British government to offer any protection to indigenous industry also added weight to the decline of Indian industries. Also, with the subjugation of Indian princely states whose rulers were the main patrons of indigenous artists and craftsmen, patronage to the handicraft industry faded away. ब्रिटिशों ने पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अत्यधिक नुकसान, ट्रिमेंडस हार्म पहुंचाया। भारतीय वस्त्रों, इंडियन गुड्स पर भारी कस्टम शुल्क, हेवी कस्टम्स ड्यूटीज लगाए गए। ब्रिटिश अधिकारियों, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने यूरोपीय वस्त्रों, यूरोपियन गुड्स को प्राथमिकता, प्रेफर दी। इससे यूरोपीय वस्त्रों की मांग, डिमांड को बढ़ावा मिला, लेकिन इसने भारत में उद्योगों, इंडस्ट्रीज के पतन, डिक्लाइन में योगदान किया। ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा स्वदेशी उद्योगों, इंडिजिनस इंडस्ट्री के लिए कोई सुरक्षा, प्रोटेक्शन न दिए जाने के कारण मशीन से बनी वस्त्रों, मशीन मेड गुड्स की प्रचुरता, अबंडेंट अवेलेबिलिटी ने भी भारतीय उद्योगों के पतन को बढ़ावा दिया। इसके अलावा भारतीय रियासतों, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के पराजय, सब्जुगेशन के साथ, जिनके शासक, रूलर्स, स्वदेशी कलाकारों, इंडिजिनस आर्टिस्ट्स और कारीगरों, क्राफ्ट्समैन के मुख्य संरक्षक, पैट्रन्स थे, स्वदेशी हस्तशिल्प उद्योग को समर्थन, पैट्रोनेज धीरे धीरे समाप्त हो गया। India was a major exporter for textiles in the early 18th century, but by the mid-19th century it lost its export market and much of its domestic market.
While India produced about 25% of world industrial output in 1750, fell to only 2% by 1900, all due to the company's attempt to make India a milch cow of British capitalism by using Indian resources to support the industrialization of England and by giving it huge captive market. भारत 18वीं सदी के प्रारंभ में वस्त्रों, टेक्सटाइल्स का प्रमुख निर्यातक, मेजर एक्सपोर्टर था, लेकिन 19वीं सदी के मध्य तक उसने अपना निर्यात बाजार, एक्सपोर्ट मार्केट और अधिकांश घरेलू बाजार, डोमेस्टिक मार्केट, खो दिया। 1750 में भारत दुनिया के औद्योगिक उत्पादन, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल आउटपुट का लगभग 25% उत्पादन करता था, जो 1900 तक घटकर केवल 2% रह गया। यह सब कंपनी के उस प्रयास अटेम्प्ट के कारण था, जिसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश पूंजीवाद, ब्रिटिश कैपिटलिज्म की दूध देने वाली गाय, मिल्च काउ बनाना था। भारतीय संसाधनों, इंडियन रिसोर्सेज का उपयोग इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करने और इंग्लैंड को एक विशाल बंद बाजार, ह्यूज कैप्टिव मार्केट देने के लिए। रूरलाइजेशन। Apart from the above-mentioned effects of British policies, overcrowding in agriculture resulted in excessive land revenue demand, growth of landlordism, rising indebtedness and growing poverty among the peasantry. Indian agriculture began to stagnate, resulting in low productivity per acre, that too when modernization of agriculture was taking place in the rest of world. In the absence of agriculture education and primary knowledge of development, hardly any modern inputs were used in India for agriculture. ब्रिटिश नीतियों के ऊपर बताए गए प्रभावों के अलावा कृषि में अत्यधिक भीड़, ओवरक्राउडिंग इन एग्रीकल्चर ने अत्यधिक भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू की मांग, डिमांड, जमींदारी व्यवस्था, ग्रोथ ऑफ लैंडलॉर्डिज्म, बढ़ते कर्ज, इंडेप्टेडनेस और किसानों, पीजेंट्री में बढ़ती गरीबी, ग्रोइंग पॉवर्टी को जन्म दिया। भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, ठहराव, स्टैग्नेट की ओर बढ़ने लगी, जिससे प्रति एकड़ उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी पर एकड़ में कमी आई, जबकि बाकी दुनिया में कृषि का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा था। कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन और विकास, डेवलपमेंट के प्राथमिक ज्ञान की कमी, एब्सेंस के कारण भारत में कृषि के लिए आधुनिक साधनों, मॉडर्न इनपुट्स का बहुत कम उपयोग किया गया। इम्प्रूवमेंट ऑफ द पीजेंट्री। In both the permanent and temporarily settled Zmindari areas, the condition of the peasants was pathetic. They were left to the mercies of the zamindars who raised rents to unbearable limits. The condition of the cultivators in the Ryotwari or Mahalwari areas was no better. Whenever a peasant failed to pay land revenue, the government auctioned his land to collect the revenue. To avoid this, the peasant was forced to borrow money from moneylenders who in the turn charged a very high rate of interest and made things worse for the peasant. स्थायी और अस्थायी रूप से निपटाए गए जमींदारी क्षेत्रों, परमानेंट एंड टेम्परेरीली सेटल्ड जमींदारी एरियाज में किसानों की स्थिति, कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स, बहुत ही दयनीय, पैथेटिक थी। उन्हें जमींदारों, जमींदार्स की दया, मर्सीज पर छोड़ दिया गया था, जिन्होंने किराया, रेंट्स बढ़ा दिया था, जो सहन करने के लायक नहीं था। रायोटवाड़ी या महलवाड़ी क्षेत्रों, रियोतवारी और महलवारी एरियाज में भी किसानों की स्थिति बेहतर नहीं थी। जब भी एक किसान भूमि राजस्व, लैंड रेवेन्यू का भुगतान नहीं कर पाता, तो सरकार, गवर्नमेंट उसकी जमीन नीलामी
ऑक्शन्ड हिज लैंड कर देती थी ताकि राजस्व वसूल किया जा सके। इससे बचने के लिए किसान को साहूकारों मनी लेंडर्स से पैसे उधार बोरो मनी लेने के लिए मजबूर किया जाता था, जो फिर बहुत उच्च ब्याज दर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलते थे और इस प्रकार किसान की स्थिति और खराब वर्स हो जाती थी। राइज ऑफ न्यू लैंडलॉर्डिज्म। British economic policies gave rise of a new class, i.e., landlords. The high revenue demands forced the traditional landowners to sell their land. Rich moneylenders and others bought this land, and the number of intermediaries who exploited the tenants grew. A consequence of rise of this class was seen during India's freedom struggle movement. Along with the princes of protected areas, it also supported the foreign rule. ब्रिटिश आर्थिक नीतियों, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ने एक नए वर्ग यानी जमींदारों लैंडलॉर्ड्स का उदय राइज किया। उच्च राजस्व मांगों हाई रेवेन्यू डिमांड्स ने पारंपरिक जमीन मालिकों ट्रेडिशनल लैंडओनर्स को अपनी जमीन बेचने सेल देयर लैंड के लिए मजबूर किया। अमीर साहूकारों रिच मनी लेंडर्स और अन्य लोगों ने यह जमीन खरीदी बॉट दिस लैंड और उन बिचौलियों इंटरमीडियरीज की संख्या बढ़ी जो किसानों टेनेंट्स का शोषण एक्सप्लॉइटेड करते थे। इस वर्ग के उदय का परिणाम कॉन्सिक्वेंस भारत के स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के दौरान देखा गया। संरक्षित क्षेत्रों प्रोटेक्टेड एरियाज के राजाओं प्रिंसेस के साथ साथ इसने विदेशी शासन फॉरेन रूल का भी समर्थन किया। दिस होल प्रोसेस प्लेड हैवोक विद द विलेज इकोनॉमी। The village panchayat's introduction of the concept of land as private and hence transferable property converted it into a market commodity. Land lost its dispossessed peasants and rural tenants were demoted to the agricultural labor class. यह पूरा प्रक्रिया प्रोसेस गांव की अर्थव्यवस्था विलेज इकोनॉमी के लिए विनाशकारी हैवॉक साबित हुई। गांव पंचायतों विलेज पंचायत्स ने भूमि लैंड को निजी और इसलिए हस्तांतरित ट्रांसफरेबल संपत्ति प्रॉपर्टी के रूप में प्रस्तुत इंट्रोड्यूस्ड किया, जिससे इसे एक बाजार वस्तु मार्केट कमोडिटी बना दिया। जमीन ने अपने वंचित किसानों डिस्पोजेस्ड पीजेंट्स को खो दिया और ग्रामीण किराएदार रूरल टेनेंट्स कृषि श्रमिक वर्ग एग्रीकल्चरल लेबर क्लास में डेमोट हो गए। डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज। An industrialized England needed good communication and transport facilities. The means of transport were very backward at that time in India. They were limited to the use of horses, camels, and bullock carts. Metalled roads, steamships and above all railways, though initially for their own benefit, the important commercial centers and areas rich in natural resources were connected by road, railway and canal networks. The Grand Trunk Road was resurrected and in 1853, the first railway line between Thane and Bombay became operative. Besides serving the British economic interests, the railways also provided quicker means of transport to their armies, which helped the British to tighten their grip over India. एक औद्योगिकीकृत इंडस्ट्रियलाइज्ड इंग्लैंड को अच्छी संचार कम्युनिकेशन और परिवहन ट्रांसपोर्ट सुविधाओं की आवश्यकता थी। उस समय भारत में परिवहन के साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत पिछड़े बैकवर्ड थे। ये घोड़ों हॉर्सेस ऊंटों कैमल्स और बैलगाड़ियों बुलक कार्ट्स तक सीमित थे।
लेकिन ब्रिटिशों ने मेटल वाली सड़कें, मेटल रोड्स, स्टीमशिप्स और सबसे महत्वपूर्ण रेलवेज का निर्माण किया, जो शुरू में उनके अपने लाभ फॉर देयर ओन बेनिफिट के लिए थे। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों, कमर्शियल सेंटर्स और प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर क्षेत्रों, एरियाज को सड़क, रेलवे और नहर नेटवर्क, रोड, रेलवे एंड कैनाल नेटवर्क्स से जोड़ा गया। ग्रैंड ट्रंक रोड को फिर से जीवन रिसरेक्टेड दिया गया और 1853 में ठाणे और मुंबई, ठाणे एंड बॉम्बे के बीच पहली रेलवे लाइन, फर्स्ट रेलवे लाइन चालू ऑपरेटिव हो गई। ब्रिटिश आर्थिक हितों, ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की सेवा करने के अलावा रेलवेज ने उनके सैनिकों, आर्मीज के लिए तेज परिवहन, क्विकर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रदान किया, जिससे ब्रिटिशों को भारत पर अपनी पकड़, ग्रिप ओवर इंडिया मजबूत टाइटन करने में मदद मिली। ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। The 19th century witnessed an increase in the cultivation of commercial or cash crops such as indigo, jute, oilseeds, sugarcane, tea, coffee and cotton. These crops were widely used in the British manufacturing industries and hence the company encouraged their cultivation. The officials of the company forced the peasants to sow cash crops in their fields. In course of time, however, this practice resulted in a decline in the production of food grains and an acute shortage of food supply. 19वीं सदी में वाणिज्यिक या नकदी फसलों, कमर्शियल और कैश क्रॉप्स की खेती में वृद्धि, इंक्रीज देखी गई, जैसे कि नील, इंडिगो, जूट, तिलहन, ऑलसीड्स, गन्ना, शुगरकेन, चाय, टी, कॉफी और कपास, कॉटन। इन फसलों का ब्रिटिश निर्माण उद्योगों, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था और इसलिए कंपनी ने उनकी खेती, कल्टीवेशन को प्रोत्साहित, एनकरेज्ड किया। कंपनी के अधिकारियों, ऑफिशियल्स ने किसानों, पीजेंट्स को अपनी जमीनों में नकदी फसलों को उगाने, कैश क्रॉप्स के लिए मजबूर किया। समय के साथ, हालांकि इस प्रैक्टिस के परिणामस्वरूप खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स का उत्पादन, प्रोडक्शन घटने, डिक्लाइन लगा और खाद्य आपूर्ति, फूड सप्लाई में गंभीर, एक्यूट कमी, शॉर्टेज हो गई। Plantations. The investments in India by British entrepreneurs were directed towards plantations which fulfilled the needs of different raw materials for their industries in England. Plantation crops were also exported to other European countries. British उद्यमियों, British entrepreneurs द्वारा भारत में किए गए निवेश, इन्वेस्टमेंट्स, वृक्षारोपण, प्लांटेशंस की दिशा में थे, जो इंग्लैंड में उनके उद्योगों, इंडस्ट्रीज की कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स की जरूरतों को पूरा करते थे। वृक्षारोपण फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स, अन्य यूरोपीय देशों, यूरोपियन कंट्रीज को भी निर्यात, एक्सपोर्टेड की जाती थी। Indigo was produced in Bengal for use as dye even in ancient times. But then it was cultivated more for catering to domestic and ritual needs than to serve as commercial commodity. Its cultivation for commercial purpose appears to have begun in the 18th century. नील, इंडिगो का उत्पादन, produced, बंगाल में प्राचीन समय, ancient times, से एक रंग, डाई, के रूप में किया जाता था। लेकिन फिर इसे घरेलू और धार्मिक, रिचुअल, जरूरतों, नीड्स
को पूरा करने के लिए उगाया जाता था, न कि एक वाणिज्यिक वस्तु, कमर्शियल कमोडिटी के रूप में। वाणिज्यिक उद्देश्य, कमर्शियल पर्पस के लिए इसकी खेती, कल्टीवेशन 18वीं सदी 18th सेंचुरी में शुरू हुई, बिगन प्रतीत होती है। Indigo cultivation by British merchants had begun in India in the 18th century. Indigo was a blue dye extracted from tropical plant used to color. The Charter Act of 1833 granted the indigo planters ownership rights in land, and soon its cultivation spread all over Bengal and Bihar. As indigo cultivation spread, its planters started oppressing the peasants. Now, they forced the farmers to grow only indigo. By 1850, indigo formed one of the most important items of export from India. The invention of synthetic dye dealt a big blow to the indigo industry and it gradually declined. British व्यापारियों, British merchants, द्वारा 18वीं सदी 18th सेंचुरी में भारत में नील की खेती, इंडिगो कल्टीवेशन शुरू की गई थी। नील एक नीला रंग, ब्लू डाई था, जो एक उष्णकटिबंधीय पौधे, ट्रॉपिकल प्लांट से निकाला जाता था और इसका उपयोग रंगाई, कलरिंग के लिए किया जाता था। 1833 का चार्टर एक्ट ऑफ 1833 नील उत्पादकों, इंडिगो प्लांटर्स को जमीन पर मालिकाना अधिकार, ओनरशिप राइट्स इन लैंड प्रदान करता था और जल्द ही इसकी खेती बंगाल एंड बिहार में फैल गई, स्प्रेड। जैसे जैसे नील की खेती बढ़ी, इसके उत्पादकों ने किसानों, पीजेंट्स पर अत्याचार, ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अब वे किसानों को केवल नील उगाने, ग्रो ओनली इंडिगो के लिए फोर्स्ड करने लगे। 1850 तक नील भारत से निर्यात, एक्सपोर्ट होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक बन गया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन सिंथेटिक रंग, सिंथेटिक डाई के आविष्कार, इन्वेंशन ने नील उद्योग, इंडिगो इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका, बिग ब्लो दिया और यह धीरे धीरे घटने, gradually declined, लगा। Tea industry developed in Assam, Bengal, South India and the hills of Himachal Pradesh during the mid-18th century. From the time of Lord William Bentinck, the government was keen to grow tea in Assam, thus the Assam Tea Company was established in 1839. The company enjoyed the government's full support, including grant of rent-free land, development of rail and road systems and other facilities. In fact, the Assam-Bengal Railway and the Chittagong port were developed exclusive to expedite tea shipments. Chai Udyog, tea industry, Assam, Bengal, Dakshin Bharat, South India और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ियों, हिल्स में 18वीं सदी के मध्य, मिड 18th सेंचुरी में विकसित हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय से सरकार असम में चाय उगाने के लिए कीन थी और इसी कारण असम टी कंपनी की स्थापना एस्टैब्लिश्ड 1839 में की गई। कंपनी को सरकार से पूरी तरह से समर्थन, फुल सपोर्ट मिला, जिसमें किराए पर जमीन की मुफ्त, रेंट फ्री लैंड देने, रेल और सड़क प्रणालियों, रेल एंड रोड सिस्टम्स और अन्य सुविधाओं, फैसिलिटीज का विकास, डेवलपमेंट शामिल था। वास्तव में असम बंगाल रेलवे और चिटगांव बंदरगाह, चिट्टागोंग पोर्ट
को विशेष रूप से चाय के मालवाहन टी शिपमेंट्स को तेजी से भेजने के लिए विकसित किया गया। Jute plantation was another lucrative investment as jute was required for packing goods. Cinchona was cultivated for the quinine which, extracted from it, was the sole cure for malaria which was hitherto a life-threatening disease. The other important plantation crops were rubber and coffee, both grown mainly in South India. जूट की खेती, जूट प्लांटेशन एक और लाभकारी ल्यूक्रेटिव निवेश था क्योंकि जूट का उपयोग रिक्वायर्ड सामानों के पैकिंग गुड्स के लिए किया जाता था। चिंचोना की खेती मलेरिया के इलाज क्योर के लिए की जाती थी क्योंकि इससे निकाला गया क्विनीन मलेरिया का एकमात्र इलाज था जो तब तक एक जीवनघाती बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज था। अन्य महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसलें प्लांटेशन क्रॉप्स रबर और कॉफी थीं जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत साउथ इंडिया में उगाई जाती थी। ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 1865 British textile mills stopped getting cotton from the United States of America. अमेरिकी गृहयुद्ध अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान 1861 से 1865 ब्रिटिश वस्त्र मिलों ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स को अमेरिका से कपास कॉटन मिलना बंद हो गया स्टॉप्ड गेटिंग, जिससे भारत में कपास की खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी इंक्रीज हुई। During this period, cotton cultivation got a tremendous boost in India to meet the raw material demands of British textile mills. इस अवधि के दौरान भारत में कपास की खेती कॉटन कल्टीवेशन को ब्रिटिश वस्त्र मिलों ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स की कच्चे माल रॉ मटेरियल की मांगों को पूरा करने के लिए जबरदस्त बढ़ावा ट्रिमेंडस बूस्ट मिला। The commercial crops were of hardly any advantage to the Indian people. They mainly benefited the Europeans, who made huge profits. Most of the products were sold in foreign markets and the British pocketed the foreign exchange. The only advantage Indians was that many unskilled jobs were created. However, these unskilled laborers had long working hours and were poorly paid. In fact, near-slavery conditions prevailed in the plantations. वाणिज्यिक फसलें, commercial crops, भारतीय लोगों के लिए लगभग कोई लाभ, एडवांटेज नहीं थी। इनसे मुख्य रूप से यूरोपियंस को लाभ हुआ, जिन्होंने विशाल मुनाफे, ह्यूज प्रॉफिट्स कमाए। अधिकांश उत्पाद, प्रोडक्ट्स, विदेशी बाजारों, फॉरेन मार्केट्स में बेचे गए और ब्रिटिशों ने विदेशी मुद्रा, फॉरेन एक्सचेंज को अपने पक्ष में किया। भारतीयों के लिए एकमात्र लाभ, एडवांटेज यह था कि कई अविकसित, अनस्किल्ड, श्रमिक नौकरियां, जॉब्स उत्पन्न हुईं। हालांकि इन अविकसित श्रमिकों, अनस्किल्ड लेबरर्स के पास लंबे कार्य घंटे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे और उन्हें कम वेतन, पुअरली पेड मिलता था। वास्तव में वृक्षारोपण क्षेत्रों, प्लांटेशंस में लगभग दास्ता जैसी स्थितियां, नियर स्लेवरी कंडीशंस थी। पीजेंट रिवोल्ट्स। द इंडिगो मूवमेंट 1859 से 62 was a peasant agitation against indigo planters who compelled the cultivators to produce indigo for the world market. Indigo was almost entirely export sector. But for political reasons they were not allowed to hold agricultural land. They were permitted to purchase and hold landed estates under Act 4 of 1837.
Before this act, indigo cultivation was carried on under Ryotwari system. In the new indigo estates of the planters, the riots turned into bonded labor. Several economic and non-economic oppressive practices, including torture, were economic practiced by the planters. नील आंदोलन, इंडिगो मूवमेंट 1859 से 62 एक किसान आंदोलन, पीजेंट एजिटेशन था, जो नील उत्पादकों, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ था, जिन्होंने किसानों, कल्टीवेटर्स को वैश्विक बाजार, वर्ल्ड मार्केट के लिए नील, इंडिगो उगाने, प्रोड्यूस के लिए मजबूर, कंपेल्ड किया। नील लगभग पूरी तरह से निर्यात क्षेत्र, एक्सपोर्ट सेक्टर था। लेकिन राजनीतिक कारणों, पॉलिटिकल रीजंस से उन्हें कृषि भूमि, एग्रीकल्चरल लैंड रखने की अनुमति अलाउड नहीं थी। उन्हें 1837 के एक्ट 4 ऑफ 1837 के तहत जमीन खरीदने, परचेज और रखने, होल्ड की अनुमति दी गई। इस एक्ट से पहले नील की खेती रायोटवाड़ी प्रणाली, रियोतवारी सिस्टम के तहत की जाती थी। नए नील के जमींदारों, इंडिगो एस्टेट्स में रायट्स, बंधुआ श्रमिकों, बॉन्डेड लेबर में बदल गए। नील उत्पादकों ने कई आर्थिक, इकोनॉमिक और गैर आर्थिक, नॉन इकोनॉमिक उत्पीड़न, ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस की थी, जिनमें यातना, टॉर्चर भी शामिल थी। Indigo production and its export was booming business in the early part of the 19th century. But it declined in the 1840s and 50s, and as a result, the profit from indigo production became uneconomical for peasants. Also, indigo was not a lucrative crop as it was planted at the same time as food crops, and the soil lost fertility because of indigo. Hence, the peasants refused to sow indigo on their land. But the planters, who had already invested huge capital, were not willing to withdraw their capital so quickly. As a result, they pressurized the indigo-producing riots to continue its production. नील उत्पादन, इंडिगो प्रोडक्शन और इसका निर्यात, एक्सपोर्ट 19वीं सदी के प्रारंभ में एक उभरता हुआ बूमिंग व्यापार बिजनेस था। लेकिन 1840 और 50 के दशकों 1840s और 50s में इसका उत्पादन घटने लगा, डिक्लाइंड, और इसके परिणामस्वरूप नील उत्पादन से होने वाला मुनाफा, प्रॉफिट, किसानों, पीजेंट्स के लिए आर्थिक रूप से अव्यवहारिक, अनइकोनॉमिकल हो गया। इसके अलावा नील एक लाभकारी फसल, ल्यूक्रेटिव क्रॉप नहीं थी, क्योंकि इसे खाद्यान्न फसलों, फूड क्रॉप्स के साथ एक ही समय, एट द सेम टाइम, में उगाया जाता था, और नील की खेती से जमीन की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी घटने लगी थी। इस कारण किसानों ने अपनी जमीनों पर नील उगाने से इनकार, रिफ्यूज्ड कर दिया। लेकिन नील उत्पादकों, प्लांटर्स ने, जिन्होंने पहले ही विशाल पूंजी, ह्यूज कैपिटल का निवेश, इन्वेस्टेड किया था, अपनी पूंजी जल्दी, क्विकली वापस नहीं लेने का इरादा, विलिंग नहीं किया। परिणामस्वरूप उन्होंने नील उगाने वाले रायोटो, इंडिगो प्रोड्यूसिंग रायट्स पर दबाव डाला, प्रेशराइज्ड, कि वे नील की खेती, कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन, जारी रखें। The first phase of revolts in eastern India started in the early part of the 19th century under Biswanath Sardar, who looted the Nilkutis, the estates of indigo planters. 2 decades later, the first signs of trouble again emerged when the cultivators of Saran, Tirhat,
Munger, Bhagalpur and Purnia refused to grow indigo. Another major revolt against the indigo planters and their zamindars was led by the Wahhabi peasant leader Titu Mir in 24 Parganas of Bengal, 1831, who provided leadership to both Muslim and Hindu lower caste peasantry. The revolt continued through 1862. The revolt ended when the government finally promised to enact laws to protect their interests. पूर्वी भारत में विद्रोहों, रिवोल्ट्स का पहला चरण, फर्स्ट फेज, 19वीं सदी, 19th सेंचुरी के प्रारंभ में बिश्वनाथ सरदार के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिन्होंने नीलकुठियों, नीलकुतीस, नील उत्पादकों के जमींदारी क्षेत्रों, एस्टेट्स ऑफ इंडिगो प्लांटर्स को लूटेड। 2 दशकों, 2 decades बाद फिर से परेशानी के संकेत, साइंस ऑफ ट्रबल, उभरने लगे जब सारण, तिरहुत, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया, सरन, तिरहुत, मुंगेर, भागलपुर एंड पूर्णिया के किसान, कल्टीवेटर्स, नील उगाने से रिफ्यूज्ड करने लगे। नील उत्पादकों और उनके जमींदारों, जमींदार्स के खिलाफ एक और बड़ा विद्रोह, मेजर रिवोल्ट, 1831 में 24 परगनास, बंगाल में वहाबी किसान नेता, वहाबी पीजेंट लीडर टीटू मीर द्वारा नेतृत्व लेड किया गया, जिन्होंने मुस्लिम और हिंदू दोनों निम्न जाति, लोअर कास्ट, किसानों, पीजेंट्री को नेतृत्व, लीडरशिप प्रदान किया। यह विद्रोह, रिवोल्ट, 1862 तक जारी कंटिन्यूड रहा। विद्रोह, रिवोल्ट तब समाप्त हुआ जब सरकार, गवर्नमेंट ने अंततः किसानों के हितों, इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए कानून बनाने, एनैक्ट लॉज का वादा, प्रॉमिस्ड किया। The intellectual class of Bengal supported the revolt by organizing a powerful campaign through newspapers, mass meetings and by giving them support in legal matters. बंगाल के बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल क्लास ने इस विद्रोह, रिवोल्ट का समर्थन, सपोर्टेड किया और अखबारों, न्यूज़पेपर्स, सामूहिक सभाओं, मास मीटिंग्स के माध्यम से एक शक्तिशाली अभियान, पावरफुल कैंपेन चलाया और उन्हें कानूनी मामलों, लीगल मैटर्स में समर्थन, सपोर्ट दिया। The aims and objectives of these movements differ in nature and degree from region to region. These movements also aimed at the unification of the peasants, development of leadership, ideology and peasant elite. These revolts never really threatened the supremacy of the British. They were spontaneous reactions to large-scale dispossession and oppression. Their anger and helplessness led to violence that was directed against the immediate source of their misery, indigo planters, zamindars and moneylenders. इन आंदोलनों, मूवमेंट्स के उद्देश्य और लक्ष्य, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्षेत्र दर क्षेत्र, फ्रॉम रीजन टू रीजन, स्वभाव, नेचर और मात्रा, डिग्री में भिन्न, डिफर थे। इन आंदोलनों का एक और उद्देश्य किसानों, पीजेंट्स का एकीकरण, यूनिफिकेशन, नेतृत्व, लीडरशिप का विकास, डेवलपमेंट, विचारधारा, आइडियोलॉजी और किसान अभिजात वर्ग, पीजेंट एलीट का निर्माण, फॉर्मेशन भी था। ये विद्रोह, रिवोल्ट्स कभी भी ब्रिटिश की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी को असली खतरा, थ्रेटेंड नहीं बने। ये बड़े पैमाने पर संपत्ति हड़पने, लार्ज स्केल डिस्पोजेशन और अत्याचार, ऑपरेशन के खिलाफ स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस थी। उनका गुस्सा, एंगर और लाचारी, हेल्पलेसनेस, हिंसा
वायलेंस में बदल गई, जो सीधे तौर पर उनके दुख, मिजरी के स्रोत, नील उत्पादक, इंडिगो प्लांटर्स, जमींदार, जमींदार्स और साहूकारों, मनी लेंडर्स के खिलाफ थी। There were several reasons that led to the agrarian uprisings in India between 1757 and 1857. The most one was the land settlement process, which structured all British policies throughout this period. भारत में 1757 और 1857 के बीच कृषि विद्रोहों, अग्रेरियन अपराइजिंग्स के कई कारण, रीजंस थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भूमि निपटान प्रक्रिया, लैंड सेटलमेंट प्रोसेस थी, जिसने इस पूरे समय, थ्रूआउट दिस पीरियड, ब्रिटिश नीतियों, ब्रिटिश पॉलिसीज को ढालने, स्ट्रक्चर्ड का काम किया। द रिवोल्ट ऑफ द पाइक्स इन ओडिशा अंडर जगबंधु, द कमांडर ऑफ द राजा ऑफ खुर्दा, 1817, द राइजिंग ऑफ द गुज्जर्स अंडर विजय सिंह तालुकदार, 1824, in Kumaon and Gadwal, and the revolt of the Gumsur Zamindars in Ganjam district of Odisha, 1835 से 37, reflected the general discontent amongst the traditional feudal elite of the period. From 1827 to 1830, there were many uprisings led by Zamindars in Vishakhapatnam against the harsh conditions imposed on them for non-payment of revenue. The one in Palkonda in 1832 was one of the most serious revolts. The economic exploitation by the British provoked an intense reaction against the Raj in Bengal. ओडिशा में जगबंधु जो खुर्दा के राजा के कमांडर थे, के नेतृत्व में पैकों का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ द पाइक्स, 1817, कुमाऊन और गढ़वाल में विजय सिंह तालुकदार के नेतृत्व में गुज्जर्स का उठ खड़ा होना, 1824, और गंजाम डिस्ट्रिक्ट के गुमसुर जमींदार्स का विद्रोह, 1835 से 37, उन समय के पारंपरिक सामंती, फ्यूडल, अभिजात वर्ग, एलीट में व्यापक असंतोष, जनरल डिस्कॉन्टेंट को दर्शाते हैं। 1827 से 1830 तक विशाखापट्टनम में कई जमींदारों के नेतृत्व में विद्रोह, अपराइजिंग्स हुए, जो उन्हें राजस्व का भुगतान न करने के कारण उन पर लगाए गए कठोर शर्तों, हर्श कंडीशंस के खिलाफ थे। 1832 में पालकोंडा में हुआ विद्रोह, रिवोल्ट, सबसे गंभीर, सीरियस विद्रोहों में से एक था। ब्रिटिशों द्वारा आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने बंगाल में ब्रिटिश शासन, राज के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया, इंटेंस रिएक्शन को जन्म दिया। The early years of British rule in India were marked by widespread peasant rebellions. Long before the revolt of 1857, peasants of Bengal and Bihar who were victims of terrible famine, 1770, rose in revolt against the East India Company, which had been extracting money and crops from them. This was the famous Sannyasi rebellion. ब्रिटिश शासन के शुरुआती वर्षों, अर्ली ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल, में भारत में व्यापक किसान विद्रोह, पीजेंट रिबेलियंस, देखे गए। 1857 के विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 से बहुत पहले बंगाल एंड बिहार के किसान, जो 1770 के भयंकर अकाल, फमाइन के शिकार
विक्टिम्स थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह रिवोल्ट उठ खड़े हुए थे, जो उनसे पैसा और फसलें मनी एंड क्रॉप्स निकाल रही थी। यह प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह सन्यासी रिबेलियन था। Along with the peasants and the sannyasis and fakirs, there were also village artisans like silk weavers of Bengal, who had been made to slave for the British merchants, and the thousands of unemployed soldiers from the disbanded Mughal army. The rebellion was led by Majnu Shah, Bhabani Pathak, Debi Chaudhrani and other figures. The revolt continued till the beginning of the 19th century. It was marked by daring attacks on the East India Company's offices in different parts of Bihar and Bengal, assassination of notorious Indian landlords and moneylenders as well as of oppressive British traders and army officers. किसानों, peasants, सन्यासियों, सन्यासीस और फकीरों, फाकिर्स के साथ साथ बंगाल के रेशम बुनकर सिल्क वीवर्स जैसे गांव के कारीगर विलेज आर्टिसंस भी शामिल थे, जिन्हें ब्रिटिश व्यापारियों ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए मजदूरी स्लेव करने के लिए मजबूर किया गया था, और मुगल सेना मुगल आर्मी के निष्क्रिय किए गए हजारों सैनिकों अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स ने भी इसमें भाग लिया। इस विद्रोह रिबेलियन का नेतृत्व लेड मजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी और अन्य प्रमुख हस्तियों अदर फिगर्स ने किया। यह विद्रोह 19वीं सदी 19th सेंचुरी की शुरुआत तक जारी कंटिन्यूड रहा। इसे बिहार एंड बंगाल के विभिन्न हिस्सों में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यालयों ऑफिसेज पर साहसी डेयरिंग हमलों अटैक्स, कुख्यात भारतीय जमींदारों इंडियन लैंडलॉर्ड्स और साहूकारों मनी लेंडर्स की हत्या असैसिनेशन और अत्याचारी ब्रिटिश व्यापारियों ब्रिटिश ट्रेडर्स और सेना अधिकारियों आर्मी ऑफिसर्स की हत्या से चिन्हित मार्क्ड किया गया। In 1822, the Ramosi revolt in Satara under Chittoor Singh was another movement to oppose heavy land revenue assessment and revenue collection methods. The Ramosis uprising finally ended when people were given land grants and admitted in the ranks of the hill police. 1822 में सतारा में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी रिवोल्ट एक और आंदोलन मूवमेंट था, जिसका उद्देश्य भूमि राजस्व मूल्यांकन लैंड रेवेन्यू असेसमेंट और राजस्व संग्रहण रेवेन्यू कलेक्शन मेथड्स के अत्यधिक तरीके हेवी मेथड्स का विरोध अपोज करना था। रामोसी विद्रोह रामोसिस अपराइजिंग अंततः तब समाप्त हुआ एंडेड जब लोगों को जमीन के पट्टे लैंड ग्रांट्स दिए गए और उन्हें हिल पुलिस के रैंक्स में भर्ती किया गया एडमिटेड। द गडकरी रिवोल्ट was organized by Gadkaris, who were hereditary servants of the Marathas. The revolt caused the British much material loss before it was finally subdued. गडकरी विद्रोह गडकरी रिवोल्ट गडकरीस द्वारा आयोजित ऑर्गेनाइज्ड किया गया, जो मराठास के वंशानुगत सेवक हेरेडिटरी सर्वेंट्स थे। इस विद्रोह ने ब्रिटिश को बहुत नुकसान मटीरियल लॉस पहुंचाया, इससे पहले कि इसे अंततः दमन सबड्यूड किया जा सके। The Chur rebellion of Bihar and Bengal broke out in 1796 and carried on till 1816.
It was widespread and could not be suppressed easily. बिहार और बंगाल, बिहार एंड बंगाल में 1796 में शुरू हुआ चुआर विद्रोह, चुर रिबेलियन 1816 तक चलता रहा, कैरीड ऑन टिल 1816। यह विद्रोह, रिबेलियन, व्यापक, वाइड स्प्रेड था और इसे आसानी से, ईजिली, दबाया, सप्रेस्ड नहीं जा सका। These revolts did not stop there. Even after a century had passed, similar revolts took place in Punjab in the early 1900s. The major difference between the old and the new revolts was that while the old revolts lacked proper organization, the new ones were organized by the Kisan Sabhas and guided by the Congress and Akali activists. यह विद्रोह यहाँ तक सीमित नहीं रहे। एक सदी, सेंचुरी बीतने के बाद भी 1930 के दशक, अर्ली 1930s में पंजाब में इसी तरह के विद्रोह, सिमिलर रिवोल्ट्स हुए। पुराने और नए विद्रोहों, ओल्ड एंड न्यू रिवोल्ट्स के बीच मुख्य अंतर, मेजर डिफरेंस, यह था कि जहां पुराने विद्रोहों में उचित संगठन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की कमी थी, वहीं नए विद्रोहों को किसान सभास ने संगठित, ऑर्गेनाइज्ड किया और कांग्रेस और अकाली कार्यकर्ताओं, अकाली एक्टिविस्ट्स द्वारा मार्गदर्शन, गाइडेड किया गया। Though the commercialization of agriculture through the introduction of cash crops and the establishment of European plantations for this purpose provided the context for the Indigo Revolt, it was the settlement of property rights that is generally considered as the main cause of the pre-1857 revolt. हालांकि कृषि का व्यापारीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नकदी फसलों, कैश क्रॉप्स के परिचय, इंट्रोडक्शन और यूरोपीय वृक्षारोपण, यूरोपियन प्लांटेशंस की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ने नील विद्रोह, इंडिगो रिवोल्ट के लिए संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट प्रदान किया, लेकिन संपत्ति अधिकारों, प्रॉपर्टी राइट्स का निपटान, सेटलमेंट, सामान्यतः प्री-1857 विद्रोहों, प्री-1857 रिवोल्ट्स का मुख्य कारण, मेन कॉज माना जाता है।